So this is the ethics case study number 6. Before this we have talked about the different 5 case studies, and the different perspectives has already been discussed. In this case study, basically I will be discussing about the right now ongoing protest of the farmers, that why the protest is not ending, what is the issue with the government, and although this issue is right now persisting in the Supreme Court, so we have to see what will be its future outcoming will be there. लेकिन इतने दिन हो चुके हैं यहाँ पे, तो फार्मर्स की फैमिली, यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो पुलिस है यहाँ पे, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारे के सारे जो है यहाँ पे इस केस स्टडी में इन्वॉल्व रहेंगे. ठीक है, तो इसको डिस्कस करने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. माई नेम इज अंकुर अग्रवाल. I am a freelance educator, and please do like this video and also subscribe to this channel for getting further the videos notifications. ठीक है, और जो है यहाँ पे आप जो है वो अंकुर IAS टेलीग्राम जो है यहाँ पे लिंक फॉलो कर सकते हैं. आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे को जो है यहाँ पे इस टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के बाद पर्सनली पूछ सकते हैं. नाउ लेट्स सी दिस थिंग. किसान और उनके परिवार जो है यहाँ पे दे आर प्रोटेस्टिंग ऑन द इंटरस्टेट बॉर्डर्स ऑफ द दिल्ली फॉर द मंथ्स, कैंप्ड आउट ऑन द रोड्स, डेमोन्स्ट्रेटिंग ओवर द गवर्नमेंट न्यू फार्म लॉज which they think will ruin their livelihood. Farmer union and their representatives have demanded that the law be repealed and have stated that they will not accept a compromise. Farmer leaders have welcomed the Supreme Court of India's stay order on the implementation of the farm laws but rejected the committee appointed by the Supreme Court. ठीक है, तो किसान और जो है यहाँ पे उनके परिवार बहुत दिनों से दिल्ली एवं जो है यहाँ पे उसके आसपास के बॉर्डरों पर जो है वो बैठे हुए हैं टेंट लगा के, और अपना जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट शो कर रहे हैं गवर्नमेंट के जो है यहाँ पे नए लॉस को लेके. किसान संगठन और जो है यहाँ पे उनके जो नुमाइंदे हैं वो बारी बारी जो है यहाँ पे इस चीज की डिमांड कर रहे हैं कि ये कानून जो है यहाँ पे खत्म होना चाहिए, और वो किसी भी हालत में समझौता नहीं करेंगे. किसान नेताओं ने जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जो है यहाँ पे स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने किसी भी कमेटी के साथ जो है यहाँ पे बैठने से मना कर दिया है. Now, farmer leaders have also rejected a government proposal of suspending the law for 18 months. 11 rounds of the talk have already taken place between the central government and the farmers represented by the farm unions, but all were inconclusive. The protesting farmers sometimes turned violent and damaged the public property in the guise of peaceful protest. Number of telecom towers of a particular company and other infrastructure was also damaged. The roads approaching to the Delhi have been turned into the protesting sites and are blocked by the protesters, causing the nuisance to passengers and local population. ठीक है? Now, however, the supporters of the law says improvement are badly needed as thousands of the farmers are struggling. Now the question is कि इस पूरी केस स्टडी में what are the ethical issues involved? Discuss the different options available and how will you respond in this case. Now let's see this thing. Now first of all, the entire case is all about the issue which has come when the government has passed the 3 farm laws. ठीक है, farmers and the farmer organizations, they are having the apprehension about the law. अब dilemma ये है whether we should continue with this law or whether we should repeal this law, right? And in this case multiple stakeholders are there: state government, central government, local administration, police, farmers, their families, etc.
ठीक है. नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस थिंग. नाउ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या एथिकल इश्यू है? Implementing the democratic values of the debate and discussion and giving the farmers adequate time to represent themselves. राइट. सरकार बारी बारी जो है यहां पे बोल रही है कि हम किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं. फिर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको पुअर फार्मर्स एवं उनकी फैमिलीज के लिए एम्पैथी शो करनी पड़ेगी. They should try to provide the basic facilities not only to the protesters but also to the local population who are affected by the protest. Then the police. Now police should take the action impartially against any culprit. Their job is to maintain the law and order. अब फार्मर्स और उनकी फैमिली के लिए क्या है? फार्मर्स और उनकी फैमिली को भी ये समझना चाहिए कि प्रोटेस्ट करना उनका जो है यहां पे ठीक है, राइट है, लेकिन नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम एंड पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाने का राइट उनका नहीं है. राइट. दे शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट इफ दे आर हार्मिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी इनडायरेक्टली वी ऑल आर सफरिंग. And being a responsible citizen, they should cooperate with the police and file the complaint against those people who are basically the culprit. Right? And then the farmer unions. फार्मर यूनियन का जो है यहां पे काम क्या होना चाहिए कि वो किसानों के सामने सच्चाई लेके आए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट की जगह जो है यहां पे नेशनल इंटरेस्ट को देखे. फार्मर्स जो है यहां पे किसी तरीके से मिसलीड ना हो इस चीज को इंश्योर करे. एंड दे शुड ट्राई टू कीप द प्रोटेस्ट पीसफुल फॉर एनी इफेक्टिव आउटकम. नाउ व्हाट आर द बेसिकली ऑप्शन अवेलेबल टू ऑल ऑफ अस? पहली ऑप्शन है सरकार के पास कि भैया फोर्स को यूज करो, प्रोटेस्टर्स को वहां से हटाओ और इंटरस्टेट बॉर्डर्स को जो है यहां पे फ्री करो. अब इसके मेरिट क्या है? रोड से जो है यहां पे प्रोटेस्टर्स हट जाएंगे, प्रोटेस्टर्स वायलेंस नहीं कर पाएंगे और जब सरकार जो है यहां पे लॉ को इंप्लीमेंट कर सकेगी. लेकिन डीमेरिट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है. हो सकता है फार्मर्स इससे बड़े जो है यहां पे आंदोलन के रूप में सामने आए और फार्मर्स का जो कंसर्न है वो अभी भी अनएड्रेस्ड है. दूसरी ऑप्शन गवर्नमेंट के पास है कि भैया तीनों जो है यहां पे जो बिल है उसको रिपील कर दो. राइट. और तीनों जो एक्ट बनाए हैं उसको भी रिपील कर दिया जाए. इससे प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, किसान वापस अपने घर चले जाएंगे. लेकिन डीमेरिट क्या है? कुछ प्रोटेस्ट या कुछ रिफॉर्म जो है यहां पे एक्चुअली रिक्वायर्ड है. अगर हमारी सोसाइटी बदल रही है तो बदलती हुई सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो है यहां पे हमारे को रिफॉर्म्स भी लाने जरूरी होते हैं. तीसरी ऑप्शन क्या है हमारे पास? गवर्नमेंट थोड़े दिनों के लिए इस एक्ट को जो है यहां पे डेफर कर सकती है और फार्मर्स से अपील कर सकती है कि आप जो अपने प्रोटेस्ट को खत्म कर दीजिए. इसके मेरिट क्या है? दोनों सरकार और जो है यहां पे किसानों को टाइम मिल जाएगा आपस में बात करने का और जितने भी जो है यहां पे एक्ट के अंदर जो प्रोज एंड कॉन्स है आपस में बैठ के जो है यहां पे दूर किए जा सकते हैं. राइट. गवर्नमेंट कोशिश कर सकती है किसान संगठनों को जो है यहां पे परस्यू करने की. डीमेरिट ये है फार्मर्स जो है यहां पे ऐसे किसी भी आइडिया के अगेंस्ट है और जो है यहां पे साथ ही साथ आज की डिमांड यह है कि ये रिफॉर्म जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट हो. चौथी ऑप्शन ये है हम फार्मर्स को एक न्यू प्रोटेस्टिंग साइट दे दें और तब तक जो है सरकार किसान संगठनों के साथ बैठ के बात करे.
इससे फायदा क्या होगा? व्हाट इज द मेरिट? द न्यू प्रोटेस्टिंग साइट लोकेटेड इज नॉट इन अ बिजी प्लेस, तो जो डेली कम्यूटर्स हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी. टॉक्स विद द लीडर ऑफ द फार्मर यूनियन एंड रीचिंग टू द कंसेंसस. डीमेरिट क्या है? ये काफी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है. ठीक है. इसके अलावा जो है रिफॉर्म लाने के लिए किसान जिस तरीके से कहते हैं कि पहले कानून खत्म करो, तो ये जो है यहां पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा. 10. व्हाट वी शुड डू. पहली और सेकंड ऑप्शन तो जो है यहां पे जस्टिफाइड नहीं है कि जी एकदम से हम जो है किसानों को हटा दें, नॉट एक्सेप्टेबल. दूसरी ऑप्शन जो है यहां पे कि जी पूरे के पूरे जो है यहां पे लॉस को ही रिपील कर देते हैं, डेमोक्रेटिकली ऑल्सो इट इज नॉट गुड एंड फॉर द सोसाइटल रिफॉर्म ऑल्सो इट इज नॉट गुड. तीसरी और चौथी ऑप्शन सबसे बेस्ट है कि गवर्नमेंट को डेफर कर देना चाहिए थोड़े दिन के लिए जो है यहां पे लॉ को, और किसानों से बैठ के बात करनी चाहिए. साथ ही साथ जो है किसानों को एक नई जगह एलोकेट कर देनी चाहिए जहां पे वो अपना प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक कर सके और डेली कम्यूटर्स जो हैं उनको जो है यहां पे परेशानी ना हो. एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट शुड परस्यू टू एजुकेट द फार्मर्स and also try to understand that why the farmers do not want to bring this reform. साथ ही साथ फार्मर यूनियंस को भी जो है फार्मर्स को प्रोज एंड कॉन्स बताने चाहिए एक्ट के. लेकिन कई बार जो है किसान संगठन अपने पर्सनल बेनिफिट को देख के जो है उसके अकॉर्डिंग चीजों को करते हैं. Right? Thus, the government should hold the continuous talks with the leaders of the farm unions without any condition and directly communicate with the farmers through the transitional media. ठीक है, जिससे जो है यहां पे किसानों तक जो है यहां पे सरकार की बात पहुंच सके, किसान भी अपनी बात जो है यहां पे सरकार तक पहुंचा सके. एंड लेट अस ट्राई और लेट अस होप कि कोई जो है यहां पे एक मिडिल पाथ जो है यहां पे निकल सके. राइट नाउ देयर एट द सेम टाइम देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट एनी वायलेंस. ठीक है, तो ये प्रोटेस्ट के नाम पे जो पब्लिक प्रॉपर्टीज को डैमेज किया जा रहा है ये किसी भी कीमत पे एक्सेप्टेबल नहीं है. एंड ऑल्सो फ्यू एंटी सोशल एलिमेंट्स they used to enter in these types of protest. तो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस को, फार्मर यूनियंस को और गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको जो यहां पे रिमूव किया जाए. राइट? thus the present situation is difficult to resolve. Major cause is the apprehension about the government intention about bringing the Farm Act, which are questioned by the farmers. इसीलिए सरकार को जो है यहाँ पे फार्मर्स को ये इंश्योर करवाना पड़ेगा कि वो सेफ हैं और इकोनॉमिकली जो है यहाँ पे उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा. बट स्टिल द इश्यू इज गोइंग इन द सुप्रीम कोर्ट, सो डू वॉच व्हाट विल बी द आउटकम. So till now, this is the best outcome what we can talk about from this case study. Right? So I hope that you have got benefit and got new perspectives to understand this situation. और ऐसे ही जो है यहाँ पे कोई भी करंट सिनेरियो से रिलेटेड कोई इशू आता है उसको जो है यूपीएससी ऐसे केस स्टडी बना के पूछ सकता है आपसे. ठीक है? थैंक यू सो मच. टेक केयर.